Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So we are reading Coal and Petroleum chapter number 5 from class 8 science book. I have already give the introduction about inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources we have discussed in our introduction part. Now then we have done one group activity. For that you have to watch introduction part and I will give you the link in this description box. You can click the link and you can watch the introduction part. Now we will continue. This is the second part of this chapter. Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum or natural gas. ने कंटेनर्स में खाने की चीजें रखे थे, एक में पॉपकॉर्न, एक में फ्राइड ग्राम, इस तरह से अलग अलग. तो आप सोच लीजिए कि उस पॉपकॉर्न के जगह में या फ्राइड राइस, फ्राइड कॉर्न की जगह में क्या है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो. Each group may have a different consumption pattern. Are the earlier generations of any group too greedy? क्या अगर फर्स्ट जनरेशन बहुत ग्रीडी हो, उसे बहुत ज्यादा उसने खर्च कर दी हो, सेकेंड जनरेशन में थोड़ा कम मिल रहा होगा और थर्ड जनरेशन के लिए खत्म हो रहा होगा. It may be that earlier generations in some groups were concerned about the coming generations and left something with for them. इन दिस चैप्टर मीन्स हमें हमारा अगर अर्लियर जनरेशन कुछ छोड़ के नहीं जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सारा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है वो कम होते जाएगा. एक दिन ऐसा होगा कि खत्म हो जाएगा. In this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms, fossils. जो कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है वो बनता कैसे है, फॉर्म कैसे करता है, वो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक पेड़ या एनिमल्स, उनका डेड जो जब मर जाते हैं, सड़ जाता है और सालों बाद ये क्या बन जाता है, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बन जाती है. These were formed from the dead remains of living organisms. So these are all known as fossil fuels. जो बहुत दिनों के एक प्रोसेस के बाद पड़े बहुत सालों तक पड़े उसमें से नेचुरल रिसोर्सेस जो मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस, उसे क्या कहा जाता है? They are all known as fossil fuels. ये याद रखने की जरूरत है. 5.1 Coal. You may have seen coal or heard about it. Coal के बारे में आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा. जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो इंडिया में ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो सब कोल से चलती थी. कोल यानी कि कोयले से. It is as hard as stone and is black in color. एकदम स्टोन के जैसा, पत्थर के जैसा हार्ड होती है और कलर भी काला होता है. Coal is one of the fuels used to cook food. कोल जो है एक फ्यूल है, एक ईंधन है जो कि खाना बनाने के काम आती थी. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. भाप, जो कोल का भाप निकलता था उससे रेल पूरा ट्रेन चलती थी. It is also used in thermal power plants to produce electricity. थर्मल पावर प्लांट जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है वो भी कोल से ही बनती है. Coal is also used as a fuel in various industries. कई इंडस्ट्रीज में कोल फ्यूल यानी कि ईंधन के माफिक काम आती है. स्टोरी ऑफ कोल. अब कोल कैसे बनती है, पूरा स्टोरी. Where do we get coal from and how is it formed? कोल बनती कैसे है, कोल हमें मिलती कहां से है? About 300 million years ago, the earth had dense forests in low-lying wetland areas due to natural processes like
flooding. These forests got buried under the soil. तो क्या कह रहे हैं कि करीब 300 मिलियन ईयर्स एगो, मीन्स 100, 100, 200, 300, 300 तक, वो भी मिलियंस ईयर्स एगो, द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट. तो क्या था, ये अर्थ में बहुत ज्यादा घना डेंस फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल था. इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, कभी फ्लड के कारण these forests get buried under the soil, जमीन के नीचे धस गया इतने बड़े बड़े जो फॉरेस्ट थे. as more soil deposited over them they were compressed, जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी आती गई वे compressed हो गए, वे सिकुड़ने लगे. the temperature also rose as they sank deeper and deeper, नीचे और नीचे जाते गया, ऊपर सॉइल की परत आती गई. Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. तो प्रेशर जो है बहुत हाई हो गया और टेम्परेचर भी बहुत हाई हो गई, और उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से जो डेड प्लांट्स हैं, जिसके ऊपर सॉइल आने के कारण डेड हो गए थे, मर गए थे प्लांट्स, वो प्लांट्स सारे कन्वर्ट होने लगे कोल में, मीन्स काले काले सख्त स्टोन जैसा बनने लगा, और वही कोल यूज की जाती है एज अ फ्यूल. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. इसको आप अंडरलाइन कीजिए और नोट डाउन कीजिए कॉपी में कि as coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation. Okay, dead vegetation जो जैसे कि पेड़ पौधे जो डेड हो जाते हैं, जमीन के नीचे रह जाते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है कोल बनने का, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं. इसको याद रखना है. इस ऐसे डेफिनेशंस को आप लिख लीजिए. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. ये क्योंकि वेजिटेशन पेड़ पौधों से बनती है, इसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है. A coal mine is shown in figure 5.2. अब फिगर 5.2 में कोल माइन आपने सुना होगा, जहां पे कोल की खैनी होती है, कोल वहां से निकाली जाती है. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas. जब हीट किया जाता है, कोल को जलाया जाता है, तो वो बर्न होने लगता है, जल जाने लगती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी प्रोड्यूस हो जाती है. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. जो कोल है वो इंडस्ट्री में प्रोसेस की जाती है, उसमें से कोल से क्या मिलती है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस. अब कोल तार आप लोगों ने सबने देखा होगा कि कोल तार रास्ता बनाते समय यूज होती है. अब हम अलग अलग से जानेंगे कि कोक क्या है, कोल तार क्या है और कोल गैस क्या है. कोक. अब कोक के बारे में जानते हैं. इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. बहुत हार्ड, पोरस जिसमें छेद हो, और ब्लैक काली. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये बिल्कुल कार्बन का प्योर फॉर्म है. It is an almost coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. coke से बहुत सारे metals extract किए जाते हैं और स्टील के मैन्युफैक्चर में भी यूज होते हैं. नेक्स्ट, कोल तार. इट इज ब्लैक थिक लिक्विड. काला घना लिक्विड है with an unpleasant smell. इसका स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं है. It is a mixture of about 200 substances. 200 चीजों के मिश्रण से कोल तार बनती है. Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints,
photographic materials, roofing materials, etc. कोलता से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाई जाती है जो बहुत यूजफुल भी होती है, जिसे हम एवरीडे लाइफ में हम लोग अपने हर रोज के लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, जो भी कलर्स होते हैं, ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ, एक्सप्लोसिव बम वगैरह, परफ्यूम्स यानी कि सैंड, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स हमें कोलतार से मिलते हैं। These days, bitumen, petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. रास्तों को बनाने के लिए बिटुमिन यूज की जा रही है आजकल, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। Now coal gas. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. coal gas जो है कोल से पाई जाती है। जब कोल से कोक बनाई जा रही हो, उस प्रोसेस के दौरान कोल गैस निकलती है। It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plant. और कोक जो है वो फ्यूल के टाइप में यूज होती है, जो सूखा कोयला होता है। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. आजकल लाइट के लिए नहीं बल्कि सोर्स ऑफ हीट के रूप में ही यूज की जाती है। तो इसके बाद हम लोग पेट्रोलियम पढ़ेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो गो थ्रू इट। आप इसके बीच से जाइए और आप लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करना मेरे साथ जरूर सीख जाएंगे। आप लोग सीखते रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।